Hello everyone, welcome back to Busynomics. From today onwards, we are going to start a new series for a new subject that is business environment. Those who are doing BBA and MBA are having this subject in their curriculum as well. So this is going to help you all people, right? So when we talk about the business environment is made up of two terms. One is business and other is environment. We basically find two terms, एक business है और एक है environment. बिजनेस के बारे में हम पहले से भी सुनते आए हैं कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज ऑल अबाउट अर्निंग प्रॉफिट, बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज. I have also mentioned something similar to that. So let's see the description written here. What is business? A business is defined as an organization or enterprising entity which is engaged in commercial, industrial, or professional activities. Business can be profit entities or they can be non-profit organizations as well, right? हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि अगर बिजनेस हो रहा है कहीं पे तो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही हो. वी टॉक अबाउट द एनजीओज. तो एनजीओज भी एक तरह का बिजनेस है बट दीज आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. So they operate to fulfill a charitable mission or further a social cause. सोशल कॉज के लिए ये एनजीओज काम करते हैं या फिर किसी मिशन, चैरिटेबल मिशन के लिए काम करते हैं. The next point, it is written that the term business also refers to the organized efforts and activities of individuals to produce and sell goods and services for profit. And businesses range in scale from a sole proprietorship to an international corporation, right? So when we start a business, it can be a sole proprietorship, a small business by a single man, and it can convert into an international corporation as well, right? So I hope the definition of business is pretty clear to you all, right? So moving on to the next term, that is goal of business. अभी बिजनेस को समझने के बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस का गोल क्या है. जनरली वी हैव अ मिसकंसेप्शन कि बिजनेस का सिर्फ एक ही गोल होता है, एक या दो गोल्स होते हैं. इट कैन बी प्रॉफिट अर्निंग और इट कैन बी टू सर्व द सोसाइटी, राइट? अगर हम प्रॉफिट अर्निंग के लिए कर रहे हैं तो नॉर्मल बिजनेस है, और दूसरा जो हमने पढ़ा चैरिटेबल कॉज के लिए, तो इट मीन्स टू सर्व द सोसाइटी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर ऑल्सो सम गोल्स ऑफ बिजनेस. The very first is profit. You can see in the slide. It can be profit. It can be growth. Like अगर कोई बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ है तो क्यों हुआ है? बिकॉज इट वांट्स टू ग्रो एंड टू लीड, राइट? नेक्स्ट इज पावर. बिग बिजनेस हाउसेस हैविंग पावर to influence the society, having the power to introduce a new change in the society, right? So in order to introduce a change, sometimes you need power, and business gives you that power, right? Next is employee satisfaction and development. When you are doing a business, so you deal with your employees, you provide better services, you provide better facilities to your employees, and that leads to the employee satisfaction and development. Next is quality products and services. Obviously, when you are doing a business, so you provide quality products and quality services to the society. ठीक है. आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपका ये हमेशा एम रहता है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स या क्वालिटी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करो, सो दैट यू कैन रिटेन योर कस्टमर्स, राइट? एंड एज वेल एज सो दैट यू कैन लीड इन द मार्केट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू दैट ओनली, मार्केट लीडरशिप. आपके बिजनेस का गोल ये भी हो सकता है कि आपको मार्केट लीडरशिप अचीव करनी है. लाइक यू वांट टू टेक द पोजीशन ऑफ मार्केट लीडर, और मार्केट लीडर की पोजीशन पे आने के लिए आपको अपने बिजनेस के सारे ही एस्पेक्ट में बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा. इधर इट बी द क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, और योर प्रॉफिट्स, योर रेवेन्यूज, और हाउ यू आर डीलिंग विद योर एम्प्लॉइज. यू हैव टू परफॉर्म वेल इन ऑल द फंक्शंस. नेक्स्ट इज जॉय ऑफ क्रिएशन. A business enjoys the joy of creation by creating quality products and services. Like when you serve to the society, when you feel the sense of participation, like yes, I am contributing something to the society.
जब वो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आता है, देन इट लीड्स टू द जॉय ऑफ क्रिएशन, राइट, दैट बिजनेस enjoys. And the last one is service to society. When a business establishes, then it serves to the society. आप प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हो या फिर आप सोसाइटी के लिए इसको सर्व करने के लिए बिजनेस कर रहे हो, बट इन ऑल द मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सर्विंग टू द society. So these are the goals of business. Like, a business can be established for profit earning, for growth, power, employee satisfaction, or service to society, or the points written here, right? So I hope it's pretty clear to you all. So moving on to the next slide, it is टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बिजनेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के गोल्स क्या हो सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था, अ बिजनेस कैन बी स्टार्ट फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप एंड कैन लीड टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, ऐसे ही बहुत तरह के 5 बेसिकली फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। It can be sole proprietorship, it can be a partnership firm, it can be a joint Hindu family, it can be a cooperative society, or it can also be the joint stock company, right? So we are going to discuss one by one. The very first is sole proprietorship. Sole proprietorship is also called as one man business. The reason is सोल प्रोपराइटरशिप में एक सिंगल ओनर होता है जो कि अपने बिजनेस के सारे फंक्शंस को रन कर रहा है, राइट। इफ यू आर अ पर्सन who is having the idea of a startup, अगर आपके माइंड में स्टार्टअप का आइडिया है और आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको क्या बोला जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर, राइट। and the business you are doing will be known as sole proprietorship because there is only one man, that is you, who is going to manage all the functions of business, right. The description written here is like that: a sole proprietorship can be explained as a kind of business or an organization that is owned, controlled and operated by a single individual who is the sole beneficiary of all profits or loss and responsible for all risk. अभी क्योंकि सोल प्रोपराइटर है, एक सिंगल पर्सन है who is owing, who is controlling and who is operating all the activities, तो जो भी प्रॉफिट होगा आपके बिजनेस का वो भी उस सिंगल सोल प्रोपराइटर का है, और जो भी रिस्क है, जो भी लॉस हो रहा है, वो भी उसी पर्सन का है, ठीक है। So let's see the merits of a sole proprietorship business. The very first is quick decision making, right? When you're doing a sole proprietorship business, so you are having the advantage of quick decision making. You are the only one who is managing all the things. तो सिर्फ आपको ही अपने डिसीजन लेने हैं, बिकॉज अगर प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो भी आपको ही बियर करना है। आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग एंड यू डोंट नीड टू कॉल द बोर्ड because you are the only one who is managing everything, right. The second point is confidentiality of information. जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे होते हो तो आपके बिजनेस में कॉन्फिडेंशियलिटी का एलिमेंट हमेशा मेंटेन रहता है, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु इज इन्वॉल्व इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको ही पता है कि आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। यू आर द ओनली वन, सो इन दैट वे यू कैन मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट इंसेंटिव। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आपको डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है आपके बिजनेस का, बिकॉज देयर इज नो थर्ड पर्सन, इवन देयर इज नो सेकंड पर्सन जिसके साथ आपको अपने प्रॉफिट्स को शेयर करना है, राइट। सो यू गेट द डायरेक्ट इंसेंटिव। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, बिकॉज क्योंकि आप ही सिंगल पर्सन हो, सोल प्रोप्राइटर इज मैनेजिंग एवरीथिंग, तो जब आपके बिजनेस को गेन होता है, जब आपके बिजनेस को प्रॉफिट होता है, आपको मार्केट शेयर इंक्रीज होता है, तो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट उस सोल प्रोप्राइटर को फील होता है, राइट। अगर अभी फॉर एग्जांपल अगर आईटीसी कंपनी का प्रॉफिट हाइक हुआ है किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो हम किसी एक इंडिविजुअल को वहां पे नहीं कह सकते कि इस पर्सन का बिजनेस है जिसने बेटर किया, राइट, बिकॉज वहां पे सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स और सबकी स्ट्रैटेजीज, एवरीथिंग इज वर्किंग टुगेदर, राइट। But in a sole proprietorship, there is a sense of accomplishment because there is only one person who is managing everything, right? The next is ease of formation and closure. Sole proprietorship is very easy to form and very easy to close as well, right? Because sole proprietor के लिए बहुत ही कम legal formalities होती हैं. Okay, so now let's see the limitations of sole proprietorship. जहाँ पे advantages है वहाँ पे कुछ disadvantages भी हैं और limitation भी है सोल प्रोप्राइटर की, as every coin has two faces.
So here we are also having limitation. The first one is limited resources. सोल जो प्रोप्राइटर है वो सिंगल पर्सन है, तो सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स थिंग, और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी अवेलेबल आप नहीं करा पाओगे अपने बिजनेस को। लिमिटेड फंड्स होते हैं, टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करना है तो आप लिमिटेड एक लेवल, सर्टेन लेवल तक कर सकते हो, बिकॉज यू आर द ओनली वन। तो लिमिटेड रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं लिमिटेशन रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप जब प्रोप्राइटर जब तक है तब तक उसकी प्रोप्राइटरशिप चल रही है। When the man is gone, the business is gone, right? Next is unlimited liability. सोल प्रोप्राइटर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस के फंक्शन को मैनेज करने की, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटर की, राइट? नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल कैपेसिटी। सोल प्रोप्राइटर एक सिंगल पर्सन है जो कि सारे डिसीजन ले रहा है, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि उस एक सिंगल पर्सन के पास बहुत अच्छी मैनेजरियल कैपेसिटी हो। लाइक वो HR फंक्शन के डिसीजन भी अच्छे से ले सके, वो फाइनेंस भी ले सके, वो मार्केटिंग के भी ले सके, वो आपके प्रोडक्शन के डिसीजन भी बेटर ले सके। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है एक सिंगल पर्सन के साथ, तो इसलिए यहाँ पे लिमिटेड मैनेजरियल कैपेसिटी का कंस्ट्रेंट रहता है, राइट? तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज क्लियर नाउ, आई होप। So moving on to the next type of business organization, that is partnership. Partnership का अगर हम basic concept समझे ना, तो partnership is made up of partners, और partners कब होते हैं? When there is more than one person. तो सिंपल सा कंसेप्ट है आपका पार्टनरशिप का, क्या कहता है? When there is an agreement between two or more than two person, जब या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी एग्रीमेंट होता है, जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनकम और लॉसेस को शेयर करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं, राइट? द डिस्क्रिप्शन रिटन हियर इज लाइक दैट: a partnership is a kind of business where a formal agreement between two or more people is made who agree to be the co-owners, distribute responsibilities for running an organization, and share the income or losses that the business generates, right? This is all what I have discussed. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि हमारे इंडिया में अगर हम पार्टनरशिप की बात करें ना, तो कौन सा ऐसा एक्ट है, कौन सा लॉ है जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर को बताता है? सो दैट इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है? आप इस एक्ट की हेल्प से पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप किस तरह पार्टनरशिप कर सकते हैं, कितने तरह के पार्टनर रख सकते हैं, ठीक है? कितना उनका रेम्यूनरेशन होगा, कैसे आपको स्टार्टिंग करनी है, कैसे आपको वाइंड अप करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन you can get with the help of this Indian Partnership Act 1932, right? So now let's see the benefits of partnership firm. The very first is easy to start and dissolve. पार्टनरशिप को स्टार्ट करना और उसे डिसॉल्व करना बहुत ही इजी है, बिकॉज वी हैव टू मेक अ पार्टनरशिप डीड ओनली, राइट? जो एग्रीमेंट बनाते हैं हम पार्टनरशिप के लिए, उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, एंड वी नीड अ पार्टनरशिप डीड टू स्टार्ट अ बिजनेस, to start a partnership firm, right? Next point is higher capital, because there are more than one person, more than one partners, तो सब लोग अपने रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करते हैं और हायर कैपिटल वहां पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? जिससे कि आप अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकते हो, बड़े लेवल पे ले जा सकते हो। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ वर्कलोड। पार्टनरशिप में जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाता है कहीं ना कहीं, बिकॉज एक से ज्यादा लोग हैं, पार्टनर्स हैं, so they used to share the burden, right? Next is better decision, because there are more than one person, so everyone is having different ideas and everyone is specialized in the different field, so it leads to the better decision for a business, right? Next is reduced risk, क्योंकि सारे ही पार्टनर्स अपने कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग रिस्क को शेयर करते हैं, ठीक है? पार्टनरशिप के बारे में अगर हम बहुत लेमैन टर्म्स में बात करें, आप सभी ने पार्टनरशिप के क्वेश्चन जरूर सॉल्व किए होंगे मैथ्स में, ठीक है? तो वो किस तरह से डिजाइन होते हैं कि अगर ए ने किसी बिजनेस फर्म में 70% कैपिटल इन्वेस्ट किया, फिर बी ने उसमें 30%, बी ने 20% किया, फिर सी ने 10% किया, और ईयर एंड में इतना प्रॉफिट हुआ, तो आप कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इस तरह के क्वेश्चंस आपने जरूर कर रखे होंगे, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं से आप समझ सकते हो कि रिस्क कितना रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जिसने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो उतने ही अमाउंट के लिए लायबल है, राइट? तो किसी सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि 100% इन्वेस्टमेंट एक ही पर्सन का होता है, तो 100% रिस्क एक पर्सन का होता है।
पार्टनरशिप फर्म में जिसने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसका उतना रिस्क होता है, राइट। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहला पॉइंट है नो बिजनेस सीक्रेट, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं तो आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रैटेजी सबके साथ शेयर करनी पड़ेगी, राइट। तो आपके बिजनेस सीक्रेट कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाते हैं, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में मेंटेन रहते हैं। नेक्स्ट इज अनसर्टेन एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस अनसर्टेन बोला जाता है बिकॉज कि जो पार्टनरशिप डीड बनती है आपकी, मेन एलिमेंट है दैट इज पार्टनर्स, ठीक है। अगर कोई भी पार्टनर आपके ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर जाता है, आपकी फर्म को लीव कर जाता है, तो वो पार्टनरशिप वैलिड जो आपकी डीड है वो वॉइड हो जाती है, ठीक है। तो फिर यू हैव टू चेंज द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड यू हैव टू मेक अ न्यू पार्टनरशिप डीड। सो देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट। नेक्स्ट इज डिले इन डिसीजन, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं तो आपको सबकी कंसेंट चाहिए डिसीजन लेने के लिए, सो इट लीड्स टू डिले इन डिसीजन, राइट। नेक्स्ट इज डेंजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि भाई एक से ज्यादा लोग हैं, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होगा, सबके व्यूज अलग अलग होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट होने का भी डेंजर रहता है पार्टनरशिप फॉर्म में। जहां भी एक से ज्यादा लोग होंगे, सबके व्यूज अलग होंगे, इंटरेस्ट अलग होगा, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होने का डेंजर रहता है, राइट। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। पार्टनरशिप फॉर्म में एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि शेयर्स जो होते हैं आपके, उनको ट्रांसफर करने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम क्यों आती है, इसका रीजन ये है कि किसी एक पर्सन ने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके पास उतने शेयर हो गए, अब वो शेयर अगर ट्रांसफर करना चाहता है तो आपको अपनी डीड में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। इट इज नॉट दैट मच इजी जितना कि हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में कर लेते हैं। जैसे आप जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप कंपनीज के शेयर यूजुअली परचेज करते हो ना, डीमैट में डील करते हो जिसमें, तो बहुत कितना इजी होता है उसमें शेयर को ट्रांसफर करना, आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए, यू डोंट नीड एनी कंसेंट, राइट। बट यहाँ पार्टनरशिप में इसके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है, ठीक है। ये था हमारा पार्टनरशिप फर्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली, दैट इसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या HUF भी कहते हैं, ठीक है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, सिंपल, जो आपका फैमिली बिजनेस होता है ना, लाइक आपके फोर फादर्स कर रहे थे, फिर जनरेशन टू जनरेशन जो बिजनेस पास होता रहता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे थे, फिर आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, और इवन इफ नाउ यू आर इंडल्ज, तो उसको हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज रिटन इन द डिस्क्रिप्शन is like it refers to a form of business organization which is owned and carried on jointly by the members of Hindu undivided family, ठीक है। एक ही फैमिली के लोग होते हैं जो कि जनरेशन वाइज बिजनेस को कंटिन्यू रखते हैं, देन वी कॉल इट अ जॉइंट हिंदू फैमिली, राइट। It is also known as the Hindu undivided family business, right? So let's see the merits of HUF. The very first is effective control, right? बिकॉज फैमिली मेंबर्स आपका बिजनेस कर रहे हैं तो इफेक्टिव कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, जैसे ही एक एक जनरेशन का जो भी हेड होगा वो रिटायर होगा तो दूसरे जनरेशन का आ जाएगा, तो जो आपका बिजनेस का एग्जिस्टेंस है ना वो कंटिन्यूड रहता है। अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप की सिंगल ही पर्सन है, जब तक कर रहा है तब तक कर रहा है, वो उसने लीव किया तो सब खत्म हो गया, ऐसा HUF में नहीं होता है, ये थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, राइट। जो भी आपके, क्योंकि फैमिली मेंबर्स आपका बिजनेस कर रहे हैं तो आपका कॉपरेशन भी रहता है और सबकी लॉयल्टी भी, देयर इज एन एडवांटेज ऑफ एक्सपेंडेड लॉयल्टी, बिकॉज जब फैमिली आपके बिजनेस कर रही है तो वो फीलिंग और वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट और वो सब दूसरा ही रहता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे HUF के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल पॉइंट है, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ HUF, the very first is there are limited resources, because देखो फैमिली बिजनेस है, तो अगर आप दूसरी कंपनी के साथ ज्वाइंट करते हो, या आप जैसे हम पार्टनरशिप में क्या कर रहे थे कि अलग अलग पार्टनर्स को लेके आ रहे थे, तो वो अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलग होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स साइड अलग होते हैं, तो रिसोर्सेज ज्यादा हो जाते हैं। बट यहाँ HUF में प्रॉब्लम क्या रहता है, HUF में एक और कंसेप्ट है कर्ता का, ठीक है। जो हेड होता है आपकी फैमिली का, तो वो बिजनेस में भी हेड रहेगा, तो जो हेड है उसको हम कर्ता बोलते हैं, ठीक है। अब वो करता जो होता है बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे रिसोर्सेज को अरेंज करना है, तो कहीं ना कहीं हमें लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रॉब्लम आ जाता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, ये जो कर्ता नाम का पर्सन है ना, यू नो हु इज हैंडलिंग एवरीथिंग, हु इज द होल सोल ऑफ द बिजनेस, उसके ऊपर जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड है, बिकॉज उसको ही सारी डिसीजन लेने हैं, हर चीज में डील करना है, तो उसके ऊपर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ कर्ता,
बिकॉज कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ही इज द ओनली वन हु इज मैनेजिंग ऑल द थिंग्स। तो कभी कभी क्या होता है कि फैमिलीज में भी ऐसा होता है ना कि हेड ऑफ द फैमिली का डोमिनेंस रहता है। तो बिकॉज फैमिली में वो हेड ऑफ द फैमिली का डोमिनेंस है, तो बिजनेस में भी कहीं ना कहीं वो डोमिनेंस जो है वो शो होती है, जिसका कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। बिकॉज देखो, जो फैमिली हेड है या बिजनेस हेड है, जरूरी नहीं है कि वो हर टाइम पे राइट डिसीजन ले, बिकॉज ही इज हैविंग लिमिटेड मैनेजेरियल कैपेसिटी, राइट, जो हमने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा था। तो वही यहाँ पे भी केस हो रहा है। तो कभी कभी इसमें डिसीजन गलत हो जाता है कर्ता का, एंड दैट में लीड टू बिग लॉस टू द बिजनेस, राइट। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अगेन दैट आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, सो नेक्स्ट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, सिंपल से कंसेप्ट है कि वॉलंटरी एसोसिएशन होता है इंडिविजुअल्स का, ठीक है, फॉर द प्रॉफिट। मेन जो पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे, दैट इज व्हाट, कि इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट, ठीक है, एंड दे आर हैविंग अ कैपिटल डिविडेंड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर। जो इनके शेयर्स होते हैं ना, वो बहुत इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, जैसे कि इसमें पार्टनरशिप में ट्रांसफरेबल नहीं होते, बट एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी दे आर हैविंग ट्रांसफरेबल शेयर्स, ओके, एंड द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। तो जिसकी वो मेंबरशिप के अकॉर्डिंग ओनरशिप उसकी जो है डिसाइड होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया था प्रोफेसर एल एच हेनन ने। Now, if we talk about the examples of joint stock companies, so we are having number of examples like Indian Oil Corporation Limited, we have Tata Motors Limited, we have Reliance Limited, we have Infosys, Wipro. There are lot many companies which are which comes under the joint stock company. Now let's see the merits of joint stock company. The very first is limited liability, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल का जो लाइबिलिटी बनता है वो कहाँ तक है, जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। दिस इज वेरी फेमस टर्म इफ यू हैव स्टडीड द कंपनीज एक्ट। तो कंपनी के बारे में जब हम बेसिकली पढ़ते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जब हम फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ते हैं ना, तो उसमें ही एक पॉइंट होता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ये पॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर हम एक लाइन में समझे ना परपेचुअल एग्जिस्टेंस को, सो इट इज people may come, like people may join or people may leave, they may go, but it will not affect the existence of the company। कितने भी लोग चाहे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, कितने भी लोग जब भी चाहे वो लीव कर सकते हैं, बट दिस विल नॉट affect the existence of your business। that is perpetual existence, and that's a positive point। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन पोटेंशियल, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, हमारे पास फंड्स ज़्यादा होते हैं, तो एक्सपेंशन जो पोटेंशियल है वो हमारे पास भी रहता है कि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं फर्दर, राइट। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर करना इज क्वाइट इजी रेदर देन पार्टनरशिप फर्म, राइट। नेक्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ रिस्क, बिकॉज देखो जहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पॉइंट होगा ना, वहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ रिस्क आएगा ही आएगा। बिकॉज लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब हर एक की लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो जब हर एक की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो रिस्क कहीं ना कहीं डिफ्यूज हो जाता है, एक सिंगल पर्सन के ऊपर ही सारा रिस्क नहीं आता, राइट। दीज वर द मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। Now let's see the demerits of joint stock company. The very first is lack of secrecy, right? Because there are a number of people in the joint stock company। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो मीटिंग में रखना ही पड़ेगा, साथ में आपके जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपकी कंपनी में, तो उनको भी आपको अपने मीटिंग्स में, आपके जो एजीएम होती है लाइक एनुअल जनरल मीट, आपको उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो सीक्रेसी वाला मैटर है वो यहाँ पे एक लूपहोल बन जाता है कि सीक्रेसी नहीं रह मेंटेन रह पाती है आपके बिजनेस में, देयर इज लैक ऑफ सीक्रेसी, राइट। नेक्स्ट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग, बिकॉज ज्यादा लोग हैं, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा आपको भी वेट करना पड़ेगा, बिकॉज मीटिंग जब आप करते हो तो एक कोरम होता है, ठीक है, कि इतने नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट होने ही चाहिए, फिर उनमें से इतने का कंसेंट होना चाहिए। तो जब तक आपके पास सबका कंसेंट नहीं आएगा तब तक आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट द सिंगल पर्सन, ठीक है, जिसको बिजनेस चलाना है। बहुत सारे लोग होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो कि इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो सबका कंसेंट चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है डिसीजन लेने के लिए। तो क्योंकि जब आप सबके कंसेंट का वेट करोगे तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज स्पेकुलेशन ऑफ शेयर्स। देखो, जब जॉइंट स्टॉक कंपनी की हम बात करते हैं ना, एंड तो द कंपनीज हु आर हैविंग अ गुड इमेज एंड अ गुड ब्रांड वैल्यू, तो उनके शेयर्स को लेने के लिए कहीं ना कहीं बैकग्राउंड पे स्पेकुलेशन चलता है शेयर्स का, ठीक है। दैट इज अल्टीमेटली बैड फॉर द कंपनी, राइट।
Next is conflict of interest. Obviously, when there are a number of people, so they are having their individual interest. So जब सबका अपना अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है तो कहीं ना कहीं इट विल लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट, राइट। और ये जो शेयर वाला पॉइंट है ना, ये इसलिए भी नेगेटिव है कहीं ना कहीं कि आपको नहीं पता कि हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर आपके शेयर को परचेज कर रहा हो, ठीक है। तो ये जो स्पेकुलेशन है, अगर मार्केट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स के साइड होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्पेकुलेशन ना हो सकता है वो आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए कर रहे हो। सो इन दैट केस ये आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि आपके कॉम्पिटिटर आपके शेयर को भी इस स्पेकुलेशन का फायदा उठा के आपके कॉम्पिटिटर भी आपके शेयर को परचेज कर सकते हैं और मैक्सिमम शेयर ले सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द जॉइंट कंपनी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, वो एक ऐसा वॉलंटरी एसोसिएशन होता है इंडिविजुअल्स का जो कि सोसाइटी को सर्व करने के लिए आया है। एक ऐसा बिजनेस जो कि सोसाइटी को सर्व करने के लिए आया है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं आया है, दैट इज नोन एज द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। The description is also written here like a cooperative society is a voluntary association that is started with the aim of service of its members, and it's a form of business where individuals belonging to the same class join their hands for the promotion of their common goals, ठीक है। जब कॉमन गोल्स होते हैं और उसके लिए कुछ इंडिविजुअल साथ में आते हैं, वॉलेंटरली साथ में आते हैं, कोई भी उनको फोर्स नहीं होता है और प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से वो नहीं आते हैं, ठीक है, देन इट नोन एज द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास अमूल, जिसकी टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल इज अ cooperative society which has been started in the Gujarat, right? Okay, so let's see the merits of cooperative society. The very first is easy to form. Cooperative society is easy to form because देखो वॉलंटरी एसोसिएशन है, ठीक है, कोई भी प्रॉफिट मेकिंग वाला नहीं है, फंडा सोसाइटी को सर्व करने के लिए आना है, तो बहुत इजी होता है इसको बनाना, कोई भी बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। नेक्स्ट इज ओपन मेंबरशिप, क्योंकि वॉलंटरी है ना, तो जितने लोग चाहे उतने लोग आ सकते हैं, मेंबरशिप ओपन होती है यहाँ पे। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, लाइक क्योंकि सोसाइटी को सर्व करने के लिए है और वॉलंटरी एसोसिएशन है, इसलिए यहाँ पे जो मैनेजमेंट भी रहता है दैट इज डेमोक्रेटिक इन नेचर एंड एवरीवन इज बीइंग हर्ड। हर किसी के आइडियाज को सुना जाता है एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। लास्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, यहाँ भी हर किसी का लिमिटेड ही लायबिलिटी रहेगा जितना कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। द वेरी फर्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल। देखो वॉलंटरी एसोसिएशन है ना, इसलिए कैपिटल भी कहीं ना कहीं लिमिटेड होता है, क्योंकि इन्वेस्ट करने वालों को भी ये डर रहता है कि हमारा प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं बिजनेस, तो हो सकता है कि हमारा कैपिटल, हो सकता है बिजनेस सक्सेसफुल ना हो या फिर मार्केट टर्बुलेंस की वजह से हमारा कैपिटल लॉस में चला जाए इन्वेस्टमेंट, तो इसलिए लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो लिमिटेड कैपिटल का कंस्ट्रेंट बना रहता है हमेशा कोऑपरेटिव सोसाइटी में। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, जो मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं वो इनएफिशिएंट हो जाता है, बिकॉज देखो जो ओनली जो मोटिवेटिंग फैक्टर है ना दैट इज मनी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मनी इज नॉट द मोटिवेटिंग फैक्टर। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इफ यू आर इंटरनली मोटिवेटेड एंड इफ यू आर हैविंग सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन कि नहीं मुझे सोसाइटी को सर्व करना है, आई एम डूइंग दिस फॉर सोसाइटी, फॉर गुडनेस ऑफ एवरीवन, राइट, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट होगा दैट विल बी बेटर, और सबके अंदर सेम फीलिंग और सेम एंथुजियाज्म होना चाहिए। अगर कहीं ये पॉइंट मिस कर रहा है तो आपका जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट हो जाएगा, बिकॉज क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद पीपल स्टार्ट लूजिंग देयर इंटरेस्ट बिकॉज उन्हें प्रॉफिट गेन नहीं हो रहा होता है, so that's in that sense it leads to the inefficient management. Next is lack of secrecy. Again बहुत सारे लोग हैं तो आपको अपने जो भी बिजनेस डिसीजन लेने होंगे वो सभी के कंसेंट से लेने होंगे, तो लैक ऑफ सीक्रेसी रहता है। एंड लास्ट इज लैक ऑफ कंपटीशन, बिकॉज प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, हमें कोई बहुत ज्यादा कम्पीट नहीं करना है मार्केट में, लैक ऑफ कंपटीशन भी रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि हमें केवल सोसाइटी को सर्व करना है। कंपटीशन कब आता है, जब आपको प्रॉफिट मेकिंग करना होता है कि नहीं मुझे मेरा इस क्वार्टर का रेवेन्यू अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा चाहिए, तो ये वाला तो टर्म यहाँ पे बिल्कुल मिसिंग है ना, क्योंकि हम प्रॉफिट मेकिंग पे तो जा ही नहीं रहे हैं। तो जब केवल सोसाइटी को सर्व करना है तो कहीं ना कहीं वो हमारा कंपटीशन भी उस लेवल पे नहीं आता है और वो सेंस नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। Still there are few points, few things that I need to cover under the types of organization, that is type of partners, because sometimes because it is related to the partnership, so sometimes it is being asked in the exam also.
So in the next video, I'm going to tell you about a type of partners. So stay tuned with us. Don't miss the next session. Stay healthy and stay safe at your homes. Thank you, everyone. Thanks for joining us.